Okay friends, in this video I will discuss about the phenomena of mutual induction. Okay, what is mutual induction? You already know that. ठीक है ना? Mutual induction क्या है? इसके लिए I have posted a previous video which deals with the section of self inductance and mutual induction differently. What we are going to do in this derivation is that we are going to find the mutual induction between two solenoids. Mutual induction between two solenoids. So what are these solenoids? I have marked these solenoids as solenoid number 1 and solenoid number 2. What are N1 and N2? Total number of turns in first and second solenoid. A1 and A2. What are these areas of the first solenoid? ये थोड़ा छोटा है. And A2 is the area of this bigger solenoid. What are N1 and N2? These are turn densities of first and second solenoid. I1 and I2 are the currents flowing in first and second solenoid. But यहाँ पे you have to remember one thing, that either you pass current I1 or you pass current I2. जब आप इसे स्टडी कर रहे हो तब आपको दोनों में से किसी एक सोलेनॉइड के अंदर ही करंट पास करवाना है, दूसरे के अंदर पास नहीं करवाना है. क्यों? क्योंकि दूसरे के अंदर कौन सा करंट होगा? दूसरे के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा. ओके, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड्स आई एम टेकिंग देम इक्वल. L1 is equals to L2 is equals to L. That means both the solenoids are of equal length. Okay, now first what I am doing, I am making pass current I1 from the first solenoid. पहले वाले सोलेनॉइड में से मैं करंट पास करता हूं. ओके, राइट. सेकंड वाले में से कोई करंट पास नहीं किया है. व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट सोलेनॉइड? सिर्फ फर्स्ट सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी? सो व्हाट दैट विल बी, B1 इज इक्वल टू म्यू 0 N1 I1. ओके, व्हाट विल बी द फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट सोलेनॉइड? दैट इज B1 into A1. दैट मींस मल्टीप्लाई B1 विद A1. Now, what will be the flux that is produced by first solenoid but which is getting paired by second solenoid? Okay, ये इस स्टेप से इस स्टेप पे आना है. ठीक है, क्या करना है? This was what? This was the magnetic flux that was produced by the first solenoid, and this is what? This is the magnetic flux which is produced by the first solenoid but which is getting paired with the second solenoid. Okay, समझ में आया? ठीक है. सो दिस इज ओनली फाइव 1 एंड दिस इज 5 1 2. 1 2 का मतलब हो गया 1 उसे प्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट फ्लक्स इज गेटिंग एसोसिएटेड विद 2. व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड सोलेनॉइड? इट इज N2. तो कितनी बार वो फ्लक्स एसोसिएट होगा? पहले एक फ्लक्स में से जाएगा, फिर दूसरे टर्न में से, फिर तीसरे टर्न में से, फिर चौथे टर्न में से, ऐसे करके कितने टर्न्स में से इट हैज टू पास थ्रू? इट हैड टू पास थ्रू N2 नंबर ऑफ टर्न्स. सो द टोटल फ्लक्स बिकम्स N2 B1 A1. ओके, नाउ just multiply this with N2 and this is what you get. N2 का जगह मैंने क्या लिखा है? N2 into L. क्यों लिखा? Because N2 is total number of turns which is equal to turn density into length. So 512 is equals to mu 0 N1 N2 L A1 I1. Now comparing this equation with the equation of mutual inductance, flux की दूसरी equation mutual inductance वाली, what is that? It is 512 which is equals to M12 into I1. Again, when I compare this, I1 is compared to this I1, 512 is again 512 and this entire expression it is equals to M12. तो M12 की वैल्यू आपके पास में आ गई. यहां पे कितनी है? म्यू 0 N1 N2 L A1. राइट, ठीक है. अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, एरिया A1 है. ठीक है, ये अंदर वाली जो सोलेनॉइड है, दिस इनर सोलेनॉइड, ये इसका फ्लक्स है जो बाहर वाली सोलेनॉइड से एसोसिएट हो जाता है. ठीक है, यहां एक पार्ट खत्म हुआ. इन द सेकंड पार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्टॉप द करंट I1. यहां से I1 को मैंने बंद कर दिया. ओके, नाउ नो करंट इज फ्लोइंग, नो बैटरी करंट इज फ्लोइंग इन 1. द करंट फ्लोइंग इज I2 इन द सेकंड कॉइल. ठीक है, अभी बड़ी वाली जो सोलेनॉइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले वो फाइंड करेंगे. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? म्यू 0 N2 I2. ठीक है, सोलेनॉइड का फॉर्मूला. देन व्हाट इज द फ्लक्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन phi2? phi2 इज इक्वल्स टू म्यू 0 N2 I2 A2. भाई फ्लक्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जैसे हमने ऊपर किया है, मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड विद एरिया. सो B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड A2 इज द एरिया ऑफ दिस A2. ये हो गया. नाउ
in the next step, I am finding the flux which is produced by the coil number 2, but which is getting associated with coil number 1. ठीक है, phi 2 क्या था? Phi 2 was flux that was produced by coil number 2. Phi 2 1 is the flux that is produced by coil number 2 and which is getting associated with 1. यहां पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है, बस इसको N1 से एक तो मल्टीप्लाई करना है, because the flux that is produced by the second coil, it has to pass through the first turn, second turn, third turn, fourth turn, सारी टर्न से पास होगा तो फ्लक्स उतने टाइम्स आपका बढ़ जाएगा. तो व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स विल बी मल्टीप्लाइड विद N1. और एक मेजर चेंज मैंने यहाँ पे किया है, A2 की जगह मैंने यहाँ पे A1 लिखा है. नाउ यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि A2 से मैंने यहाँ पे A1 क्यों लिख दिया. दिस वॉज द फ्लक्स that was produced by second coil. This is the flux that is produced by second coil which is getting associated with the first coil. दोनों का जो कॉमन फ्लक्स है, दोनों का जो कॉमन फ्लक्स है ये उसकी इक्वेशन है. अब देखो कॉमन क्या होता है. सपोज आई हैव हियर आई विल ड्रॉ समथिंग. आई हैव ए बिगर बॉक्स एंड आई हैव ए स्मॉलर बॉक्स. स्मॉलर बॉक्स है स्मॉल b, कैपिटल बॉक्स है b. ठीक है, तो सपोज देयर इज वन पॉइंट इन बॉक्स बी. ये पॉइंट एक चॉकलेट मान के चलो. ओके, सो आई हैव वन चॉकलेट इन स्मॉलर बॉक्स. हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन बिगर बॉक्स? वन, बिकॉज वट एवर इज देयर इन द स्मॉल बॉक्स इट हैज टू बी देयर इन द बिगर बॉक्स. ठीक है, नाउ आई हैव वन मोर चॉकलेट. एक और चॉकलेट यहां पे मैंने रख दिया स्मॉलर बॉक्स के अंदर. तो बताओ स्मॉलर बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हो गई? 2. बिगर बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हो गई? 2. अभी मैंने एक चॉकलेट यहां पे रख देता हूं, 2 चॉकलेट्स रख देता हूं, ज्यादा भूख लगी है तो. ठीक है, सो हाउ मेनी chocolates are there in small box? 2. How many chocolates are there in the bigger box? They are 4. But when I ask what is the common number of chocolates, what is the common number of chocolates between the small box and the bigger box? That is 2. The common number of chocolates, the shared, ऐसी कितनी चॉकलेट्स हैं जो स्मॉल बॉक्स और बिगर बॉक्स दोनों शेयर कर रहा है इसकी इस डायग्राम में. सो देयर आर ओनली 2 चॉकलेट्स. तो द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विच इज शेयर्ड बिटवीन बोथ द बॉक्सेस, ये किस पे डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन हियर या उन चॉकलेट्स पे जो स्मॉल बॉक्स के अंदर हैं. The number of chocolates that are shared by the small box and the bigger box depends only on the number of chocolates that are in the small box. जल्दी बोल रहा हूं, ठीक है, फिर से धीमे से सुनो उसको. ठीक है, ओके. अब स्मॉल बॉक्स और बिगर बॉक्स के अंदर जो शेयर्ड नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, मतलब जो ऐसी चॉकलेट्स जो दोनों बॉक्सेस के अंदर हैं, डज इट डिपेंड on the total number of chocolates or does it depend on the number of chocolates in the small box? It depends only on the number of chocolates in the small box, क्योंकि small box में ही जो chocolates होंगी वो दोनों box के अंदर है ऐसा गिना जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो flux find करना था. यहाँ से अब यहाँ पे आ जाओ. Okay, I have to find that flux which was common between the small solenoid and the bigger solenoid. ठीक है, that depends upon what? That will depend on not the area of the bigger solenoid, it will depend on the area of smaller solenoid. तो यहां पे A2 की जगह क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा. ओके, एंड देन N1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? N1 into L, जैसे कि यहां पे लिखा था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. एंड दिस इज phi 2 mu 0 N1 N2 L A1 I2. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो इक्वेशन है. phi 2 1 is equals to this, phi 2 1 is also equals to this. अभी देखो यहां पे दिस करंट एंड दिस करंट ये कंपेयर हो गए, दिस फ्लक्स एंड दिस फ्लक्स ये कंपेयर हो गए, और ये जो बचा है स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, दिस इज इक्वल्स टू दिस M21. So what is M21? It is mu 0 N1 N2 L A1. ठीक है, now compare M21 with M12. What was M12? See this equation. What is M21? Again see this equation. Are these same? Yes. दोनों क्या है? दोनों same है. So can I write? अभी इधर आ जाओ. Can I write M1 is equals M12 is equals to M21? Yes, of course. Numerically, both of them are equal. Both of them are equal. Clear? So,
if whether you pass the current from the first coil and see the induction, mutual induction in the second coil, or if you pass the current in the second coil and see the mutual inductance in the first coil, the value of mutual inductance will be same. Okay, ठीक है. अभी इसके साथ में एक एडिशनल एक और चीज आती है which is connected to mutual inductance of two solenoids, which is coefficient of coupling. Coefficient of coupling, ठीक है. अभी ये coefficient of coupling क्या होता है? Coefficient of coupling is a number that tells you how is their flux mutually shared. ठीक है, दोनों के बीच में जो कॉमन फ्लक्स हो रहा है वो किस वैल्यू का है. मतलब या तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होगी, जैसे अगर हमने यहां पे लिया, ठीक है, एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल को डाला है, देन द फ्लक्स शेयर्ड विल बी मैक्सिमम. उसके बाद में इफ यू प्लेस द कॉइल्स लाइक दिस, then also the flux sharing between them is very good. But when you place the coils like this, you place the solenoids like this, कैसे रखा है? पैरेलल रखा है, ठीक है. तो यहां कपलिंग वर्स्ट होती है. दिस इज द वर्स्ट कपलिंग. तो क्या हमारे पास में कोई और तरीका है इनको रखने का? यस. अभी सपोज करो दिस इज द फर्स्ट कॉइल, दिस इज द सेकेंड कॉइल. ओके, इफ दे आर इनसाइड ईच अदर, ठीक है ना, एक के अंदर दूसरा है, तो फ्लक्स शेयरिंग बहुत अच्छा होगा. ऐसे रख दिया तो भी फ्लक्स का शेयरिंग अच्छा होगा, ऐसे रख दिया तो सबसे कम होगा. अगर किसी एंगल पे रखा है, देखो दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स, दिस इज मिनिमम फ्लक्स, एंड इफ इट इज लाइक दिस देन द फ्लक्स विल बी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम और 0 से ज्यादा हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? लेस देन और इक्वल टू 1, greater than or equal to 0. Now coming to the formula, how do we calculate this coefficient of coupling? So it has got a very simple formula. Coefficient of coupling is equals to mutual induction upon this L1 N2 इसका square root. Okay, if this number coefficient of coupling is a bigger number, then the sharing of flux is very good. If this is a smaller number, the sharing of flux is